पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next session of Confidence Booster. Are we all enjoying? I hope so. बड़ी मेहनत जा रही है, so you better enjoy. And if you're enjoying, it should show in your reaction. So welcome to the next PTCB Confidence Booster. Let's get started with our work. Confidence Booster, Current Affairs and Practice Questions by PT Education. करके दिखाएंगे. Remember, जो भी free excerpt आपको YouTube पर मिला है, यदि आपको पूरा सेशन देखना है, तो please come to the PT Booster site. The full session is available there. It's free forever for everyone. Let us begin with some words of wisdom. I have a simple suggestion. ये जितने भी words of wisdom हम ले रहे हैं, आप एक अलग से notebook में पन्ना बना के उस पर लिखते चलिएगा. And keep reminding yourself, these are very carefully chosen messages, specifically keeping young students in mind. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. A very simple message, but with a very, very deep impact creating capability if you remind yourself of this. And of course, करके दिखाएंगे में तो दम है ही बेटा. दिन में 100 बार चीख चीख के बोला करो. Before I start with the session, a quick reminder. Thank you so much for the awesome response for the PT's Vocabulary Development course. The pace of enrollments is amazing. Thank you very much for the faith you have shown. The first session would be on from 5th of May 2017. इसमें कुल 50 सेशंस होंगे और ये एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है यदि आपको वोकैबुलरी पर कंप्लीट कमांड बनाना है तो, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो. Confidence Booster is offering you current affairs highlight to help revise all major latest issues. We offer you practice quiz questions alongside. हम सब कुछ आपको हिंदी में समझाते चलते हैं and of course all this is free. I can guarantee you will find all this extremely useful for all major government exams, UPSC, RBI, Bank PO, PSC, CGL, CDS, etc. और निश्चित तौर पर सभी MBA एंट्रेंस एग्जाम, GDs, etc. पूरा लाभ उठाते चलें और साथ ही साथ पैरेलल बोधी बूस्टर पोर्टल रोज विजिट करें. वो अपने आप में खजाना है ज्ञान का, मिस बिल्कुल मत करें. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. Current Affairs Highlights. We are ready with the 10 major highlights which will help you revise everything of importance happening around us. World Politics. Let us start with Vishwa Rajniti. President Donald Trump of America and President Vladimir Putin of Russia discussed the humanitarian crisis in Syria during a telephonic conversation. This was the first such conversation between these two after America had launched a Tomahawk cruise missile strike in Syria in April 2017. That was actually quite unexpected. जब अमेरिका ने अपने जहाज से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों करीबन 59 मिसाइल दागी थी सीरिया पे और उसके बाद इमीडिएटली अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOEB भी गिराया था. ये हमने कवर किया है पहले. Both countries, that's America and Russia, expressed interest in working towards the ceasefire in the region. इसी वीडियो बॉक्स के नीचे बूस्टर साइट पर पीटी की आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जरूर पढ़िएगा. डीप लर्निंग के ये तरीके हैं. तो आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, हम आपको पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन और वो भी ऑलमोस्ट फ्री दे रहे हैं. तो कम से कम यूज ढंग से कर लो, आपको बहुत फायदा होगा. नाउ इफ यू लुक एट द सिचुएशन इन सीरिया, this is the situation which keeps evolving on a day-to-day basis. Syrian government in red, ISIL or ISIS or Daesh as Americans call it, Islamic State, Islamic Raj, Kurdish forces. Kurdistan is the demand of the Kurd community there, जिसको कर्डिस्तान भी कई लोग कहते हैं, कर्ड भी कहते हैं. टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान वॉज इन इंडिया और उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया. ये तो भारत की शालीनता रही कि हमने कुर्दिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया, नहीं तो उठाने को तो हम भी वो मुद्दा उठा सकते थे. इट इज़ अ फेस्टनिंग प्रॉब्लम फॉर टर्की. तो यहाँ पे कुर्द लोग रहते हैं. देयर आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड अ प्राउड पीपल एंड सम अदर ग्रुप्स. ये रिबेल ग्रुप्स को ध्यान रखिएगा, अमेरिका वगैरह से सहायता मिलती है. This we have covered in some of our premium portals, the main political rifts in the Middle East. इसको बहुत गहराई से हमने हमारे प्रीमियम सेशंस में, IAS एकेडमी के क्रैकर सेशंस में, प्रबोधन में समझाया हुआ है.
तो फॉर द सेक ऑफ द जनरल स्टूडेंट्स हु आर अटैच्ड विद अस, ये वहां की खिचड़ी स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि एक स्टेज के बाद इनमें से किसी को भी समझ नहीं आता होगा कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, इनर्शिया में बस चलते चले जाते होंगे। वो इधर लग गई गोली उधर लग गई गोली, दे वुडंट रियली बॉदर, क्योंकि ये समझ में आना किसको है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगेन। Amid rising tension in the Korean Peninsula, President Trump eased his tough stand against the Kim regime and offered to meet the North Korean leader Kim Jong-un under circumstances. Now, this is a shocking development. देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति आगे बढ़कर ये बोलते हैं कि मैं उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर, वहां कोई पद तो होता नहीं है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, बस एक ही पद है, सुप्रीम इटर्नल फाइनल ग्लोरियस गॉड लाइक बेनेवोलेंट मर्सीफुल, अरे ये वो क्या बूस्टर सेशन नहीं है, सॉरी, ग्रेट लीडर। सो किम जोंग उन से मैं मिल सकता हूं, ये ट्रंप ने बोला। तो जितने बाकी के डेमोक्रेटिक नेशन है दुनिया के, फॉर देम इट्स अ ग्रेट शॉक दैट इफ यू आर अ डिसेंट कंट्री फॉलोइंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, देन देयर इज नो इंसेंटिव फॉर यू एनी मोर। तो इससे तो अच्छा अपने न्यूक्लियर मिसाइल से सबको धमकाते रहो, तो अल्टीमेटली अमेरिका भी बोलेगा कि मैं एक दिन आपसे मिलने आ सकता हूं। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी अ रूज, दिस कुड बी अ ट्रैप, whatever it is, but this is a shocking thing. The outreach came even though North Korea repeatedly rebuffed Washington, यानी उसको बिल्कुल ठुकरा देना, and continues to provoke America. It's a shocking development for the law-abiding democratic governments across the world, including India. किम फैमिली से संबंधित कुछ लिंक्स हमने नीचे दिए हैं, जरूर पढ़िएगा। इवेंट्स, अब कुछ घटनाओं पे बात करें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को भी इसमें अपना योगदान देता है। UNESCO leads the worldwide celebration, underlining the importance of free press. PM Modi said it's a day to reiterate our unwavering support towards the free and vibrant press, which is vital for a democracy. एक बात की तारीफ हमें निश्चित तौर पे करनी पड़ेगी। भारत में जितनी आज़ादी मीडिया को और जितनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्यायपालिका को हासिल है, बहुत एशिया में तो प्रैक्टिकली किसी भी देश में नहीं है। टर्की हैज टर्न्ड अथॉरिटेरियन, रशिया कंप्लीटली, चाइना बात करना ही बेकार है, ये बोलोगे तो आप और परिवार ही गायब हो जाएगा। पाकिस्तान नो वे, आपको जान से ही मार देंगे। So one can understand that for India to keep these flames burning bright has been an awesome achievement. Unfortunately, many in India itself are not willing to really respect and appreciate it, but truth remains the truth. यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ये आप जरूर याद रखिएगा। फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन एग्जाम दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, और 1997 से 2017 तक किन किन लोगों को ये अवार्ड मिला है, स्क्रीन पर उनके नाम हैं, सारे याद कर लेना। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, विधि और संविधान। The Supreme Court of India will hear a petition challenging the government decision of making Aadhaar mandatory for PAN and also filing tax return. So this whole case is now in its end game. आधार को जब से अनिवार्य किया गया है तब से ये झगड़ा लगातार चल रहा है. The government had earlier decided to make Aadhaar mandatory for PAN and also for filing tax return, citing that the step was taken to curb the use of fake PAN कार्ड. आधार पे हमने बहुत सा मटेरियल तैयार किया है, वो सारी लिंक्स दी हैं, आराम से शांति से पढ़ना, आपको समझ में आएगा. यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो समझने वाली है, एज अ सिटीजन इफ आई एम अकस्टम्ड टू थिंकिंग अबाउट प्राइवेसी, निजता का अधिकार, दैट एटलीस्ट माई बॉडी इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट it is a myth for the citizens of India or any other country to imagine that all the organs of their body are completely their own property. What a thing to say. तो अगर हम फिंगरप्रिंट्स मांगते हैं तो कोई मना नहीं करेगा, नहीं तो हम देश कैसे चलाएंगे? दैट्स बिटवीन द लाइन्स. तो बहुत ही एक कैटाक्लिज्मिक पीरियड से हम गुजर रहे हैं और ये तो बहुत हल्की समस्या है. जिस प्रकार गूगल, फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारा डेटा लिया है और पब्लिक किया है, या एटलीस्ट खुद के कमर्शियल यूज के लिए किया है, द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन प्राइवेसी डिबेट इज ग्रॉसली it's understood to a very low level or a limited extent in nations like India at least. यहाँ आप हम बड़े खुश होते हैं, गूगल इज फ्री, फेसबुक इज फ्री. अरे नथिंग इज फ्री, देना तो फ्री लंचेस. वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेके एड्स परोस रहा है जिससे वो खुद 100 बिलियन का धंधा करता है. बट इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड इट. वी आर हैप्पी इफ समथिंग कम्स टू अस फ्री विदाउट रियलाइजिंग कि उस गूगल की कॉस्ट इस देश को कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी. खैर वो एक अलग ही डिबेट है. एज ऑफ नाउ द आधार
and the coming of Internet of Things portends very ominous developments for the future. This is for humanity as a whole. This is nothing against the government of India as such. पर ये पूरा एक जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन है ये बड़ा मज़ेदार है, एटलीस्ट पढ़ने के लिए तो बहुत मज़ेदार है. Constitution and law. MP became the first state of India to change the financial year to the calendar year. तो मध्य प्रदेश ने बहुत ही महान कार्य करते हुए अपने वित्त वर्ष को कैलेंडर वर्ष से मेल कर दिया, यानी जनवरी से दिसंबर. तो पहले था 1 अप्रैल से 31 मार्च जो भारत का है. So this decision came after Prime Minister Modi pitched for it at the नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग. नीति आयोग पर हमने बहुत सारा स्पेशल मटेरियल अलग से तैयार किया है, लिंक दी है, पढ़ लेना. This will help synchronize union budget with monsoon cycles and cropping season. एक बहुत बड़ा तर्क जो दिया जाता है वो ये है कि भारत में इफ द फाइनेंशियल ईयर और द फिस्कल ईयर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द कैलेंडर ईयर, यदि वित्त वर्ष को कैलेंडर ईयर के साथ एक समान कर दिया जाएगा तो हमारी पूरी मॉनसून की साइकिल्स और क्रॉपिंग साइकिल्स के साथ यूनियन बजट का सिंक्रोनाइजेशन से बहुत लाभ होगा. एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में योगदान 18% से कम है, लेकिन 60% से अधिक जनता भारत की कृषि से जुड़ी हुई है. तो डिस्पाइट अ वेरी पुअर वैल्यू वाइज कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर, बिकॉज मोर देन 60% ऑफ अ पीपल अनफॉर्चुनेटली, आई वुड यूज द वर्ड, आर स्टक इन एग्रीकल्चर. तो भारत सरकार के बहुत से डिसीजन इससे भी प्रेरित होते हैं. दुनिया भर में स्थिति क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है. दिस इज जस्ट टू टेल यू कि ये कोई वर्ल्ड वाइड रूल नहीं है 1 to 31 दिसंबर. और ये तो मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिए, ऐसे और बहुत सारे दूसरे भी वर्ष चलते हैं. सो हर देश अपने हिसाब से करता है. अंग्रेजों की वजह से भारत का ये सिस्टम बना हुआ था और प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से बदल देने में इच्छुक है. तो हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए, what has the present government done to overturn the British customs running through all these years? क्या क्या हुआ, यूनियन बजट से संबंधित क्या हुआ, वगैरह वगैरह कमेंट्स में जरूर बताइएगा. साथ ही कमेंट्स में यह भी बताइए that if you were to choose the name of the 5 most troublesome leaders in the world who are shaking up the balance of geopolitics, तो वो 5 नाम आपके हिसाब से कौन होंगे. ठीक है, ये जरूर बताइए कमेंट्स में. PT's vocab कोर्स अवेट्स यू. बहुत शानदार कोर्स है, आपको बहुत फायदा होगा और पूरा सेशन आपको हमारी साइट पे मिलेगा. ध्यान रखिएगा.